Go. Yes. Very good afternoon, boys and girls. Very good afternoon, boys and girls. We have started learning corporate finance. कॉर्पोरेट फाइनेंस, जैसे मैं बोल रहा था, फाइनेंस सुनते ही मारवाड़ी आदमी बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता है, रोक ही नहीं पाता खुद को। वैसे मैं भी नहीं रोक पाता जब फाइनेंस सुनता हूं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस कॉर्पोरेट फाइनेंस में अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखा दैट फाइनेंस इज नथिंग बट मनी एंड मनी मैनेजमेंट। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, इट्स अबाउट कॉर्पोरेट मनी एंड मनी मैनेजमेंट। We started with understanding the definitions of corporate finance. Then lastly, we understood that corporate finance is majorly concerned with two decisions. What are the two decisions? First is financing. First is financing decision. Second is investment decision. Financing decision talks about raising of capital or finance into the business from the correct source. And investment decision talks about investment of the procured finance in a right direction. When the procurement of finance and investment of same will be in a proper manner, then and then only we can say that there is proper financial management. क्योंकि बिजनेस फाइनेंस को क्या कहता है बेटा? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, और जब तक इस दिल की धड़कनें चलती रहेगी तब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। जिस दिन दिल की धड़कनें बंद हो गई, फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट हो गया, उस दिन आपका बिजनेस का राम नाम सत्य होना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट व्हाट इज द एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसे पहला पॉइंट देखा था, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में बहुत से डिसीजंस मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। हु लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, माय डियर फ्रेंड्स? The board of directors. Who are directors? The elected representatives of the members are the board of directors, and so they are called the directors, and the directors collectively form a board which is called as board of director, and the board of director collectively takes the business decision. board of directors जो है, जिसमें अलग अलग directors representatives हैं, ये collectively बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं। लेकिन पहला पॉइंट जो हमने समझा कि बिजनेस का कोई भी डिसीजन, या फिर जैसे अल्फाबेट कहां से शुरू होता है? ए से। नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से, राइट? सो इसी हिसाब से बिजनेस का कोई भी डिसीजन, एनी डिसीजन विच इज टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फाइनेंस। बिजनेस का कोई भी डिसीजन, मेजरली कोई भी डिसीजन, मोर टू बी प्रेसाइज इकोनॉमिक डिसीजन, कैनॉट बी टेकन without considering finance. First you have to understand finance, then you can come to an economic decision of the business. Next point we understood, helps in raising capital for a project. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगता है। क्या कोई बिजनेस बिना कैपिटल का खड़ा हो सकता है? Do you think any business can be set up without capital? If there is a business idea, we need to start that particular business, you need to have capital. No business, really no business can be started without capital. You need capital, you need money in the business. Ultimately, by doing business, your motive is to earn profit. For earning profit, you have to produce the goods and services. For production of the goods and services, we require various factors which is called as the factors of production. And factors of production are not free, my dear child. क्योंकि दुनिया में ना बीवी, ना मैया, ना बाप बड़ा, ना भैया, the whole thing is that कि सबसे बड़ा रुपया. So those factors of production will claim a reward, and for paying that reward so that you can produce the goods and services, ultimately you will need capital. No business, really no business in this world can be carried out without having capital. इस दुनिया में कोई भी business बिना capital का चलाया नहीं जा सकता. Does everyone agree? So helps in raising capital for a project. So whenever we want to start a project, whenever we wish to start a business, ultimately what is going to help us? Corporate finance. Next point, helps in research and development, right? Okay, recently बात करेंगे COVID-19 की situation है. The COVID coronavirus is showing different strains every 6 months. So there is a lot of research and development that is to be done. The major problem with this particular virus is this virus is changing its form every 6 months. हर 6 महीने में ये वायरस अपना जो फॉर्म है वो बदल रहा है. यार पहले के 6 मंथ में अगर आप देखें 45 प्लस वाले ज्यादा टारगेट पे थे उसके स्ट्रेन में. रिसेंट वाला जो ज्यादा इफेक्ट करने वाला जो पॉइंट था, दैट वाज इफेक्टिंग पीपल बिटवीन 18 to 45.
18 to 45 के लोग इस वाले सेकंड स्ट्रेन में ज्यादा इफेक्ट हुए, और क्योंकि हमारे पास भारत में पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45, दैट इज द रीजन वी सॉ सच अ ह्यूज आउटब्रेक एंड द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस. Now they are saying that it is again going to change its layers and will have third strain which could affect people below 18. They are just saying, ऐसा कुछ होता नहीं. डर बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को डर की भाषा ही समझती है. प्यार से समझाए किसी को नहीं समझता. प्यार से बोले बेटा होमवर्क कर ले, बेटा कर ले बेटा होमवर्क कर ले, कोई नहीं करता. लेकिन जब बोलता ना चल गेट आउट, फिर वो बरोबर होमवर्क बुक कंप्लीट करके लाता है. क्योंकि हमारे इंडिया में रीत भी है, प्यार से बोला वाला कोई किसी को समझ में नहीं आता. जब तक गुस्सा ना करो, डांट से ना करो, डर ना बताओ, तब तक कोई आदमी काम नहीं करता. ये हमारे इंडिया की रीत है. तो समझते हुए बात कि हर 6 महीने में ये वायरस अपना स्ट्रेन, अपनी क्वालिटीज, अपने फीचर्स बदल रहा है. तो मुझे बताइए, हर 6 महीने में जब अपना रूप, अपना फॉर्म जब चेंज कर रहा है, इसे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन बना रही है, डू यू थिंक दे विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट? डू यू थिंक कोविड की वैक्सीन बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बनाई जा सकती है? There is a huge amount of research and development that is to be done into the business for the pharmaceutical companies to come at the vaccination formula for COVID-19. In India, we are just having 2 companies whose vaccination and formula has been approved by the central government. One is Serum, another is Bharat Pharma and Serum. Serum जो है वो पूना वाला का है, भारत फार्मा किसका है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं. तो भारत फार्मा प्रोड्यूसेस कोविशील्ड and Serum Institute produces Covaxin. These are the 2 vaccines which have been given to all the people right now in the country, where more than 30 crore people have already been vaccinated in the country, right? Still more than 100 crore of people are still without vaccines. So recently आप देख रहे हैं कि कोविड वैक्सीन में शुरुआत में जब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था, फर्स्ट वैक्सीन के बाद सेकंड, जैसे मेरा कोविशील्ड है फर्स्ट वैक्सीन, my second dose is scheduled 45 days later. But ultimately what the government has done, they have cancelled the schedule of second vaccine of 45 days and they have moved it to 85 days. What the particular point is कि मुझे अगर second dose देते बैठे हैं, तो लेट्स से अगर 18 साल का प्रथमेश है, उसे फर्स्ट डोज के लिए उतना डिले होगा. अगर फर्स्ट डोज भी अगर चला जाता है तो कम्युनिटी स्प्रेड को बहुत बड़े हद तक रोका जा सकता है. सो ऑलरेडी जो फर्स्ट वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें अब सेकंड वैक्सीन 85 डेज से पहले नहीं मिले, तो इन बिटवीन के 40 दिन के गैप में जिन लोगों को फर्स्ट वैक्सीन नहीं मिला, उनका वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं. अगर अपना 100% फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी हो गया, तो पिछले साल जो या पिछले 2-4 महीने में जो हिसाब का डिवास्टेशन हमने, डिस्ट्रक्शन हमने इस वायरस की वजह से देखा, उसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है. मेरी बात मुद्दे की यह है कि जब ये एक ऐसा डेंजरस वायरस है जो अपना फॉर्म हर 2-4-6 महीने में बदल रहा है, और हर फॉर्म के हिसाब से वैक्सीनेशंस में कुछ बदलाव करने होंगे. सी, वैक्सीनेशंस नाउ टू यू ऑल बिलो 18 कैनॉट बी गिवन द सेम विच इज गिवन टू द पीपल अबव 18, क्योंकि उसके कंटेंट और उसके जो बोलते हैं ना इंटेंसिटी में डिफर करता है. इट मस्ट बी ऑफ वेरी हाई इंटेंशन एंड डोज, इंटेंसिटी एंड डोज व्हेन इट इज गिवन टू पीपल ऑफ अबव 18. जब बिलो 18 के बच्चों को देना है तो उसके ऊपर अलग से, उसके ऊपर फॉर्मूला के ऊपर काम करना होगा. सो एवरी टाइम दिस पर्टिकुलर सीरम कंपनी एंड भारत फार्मा have to do a lot of research and development for coming out with the vaccine. I guess one of the vaccines has been put to trial of the Serum Institute for people below 18. Sooner or later, in 1 or 2, we'll also have vaccination for all you guys below 18. The point to be understood here is, under this particular situation of COVID-19, where we are going to see a lot of research and development, do you think all this work which is going on the research and development of the vaccine, can it be carried out without finance? Can it be carried out without finance? Ultimately, when you will have finance, then and then only you can do research and development. ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ 2 ही फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बट स्टिल मे बी दे आर नॉट गोइंग विद द करेक्ट फॉर्मूला, और आइदर दे आर शॉर्ट ऑफ द फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू डू सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. किसी भी बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना जरूरी है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब करेंगे तभी जाकर बिजनेस की तरक्की होती है. It's not the survival of the fittest, but the most adapted to the change survive. और बदल वही कर पाता है जो अपने बिजनेस में रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, और बिजनेस के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए शुरुआती कहां से होगी? फाइनेंस. लेट्स से सीरम और भारत फार्मा के पास पैसा ही नहीं है,
डू यू थिंक दे विल बी एबल टू डू दैट मच अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वैक्सीन? कितने ट्रायल्स करने पड़ते हैं, कितने फेलियर जाते हैं, फिर जाके उसके ऊपर जो है वैक्सीनेशन का करेक्ट डोज और करेक्ट फॉर्मूला मिलता है। ऐसा नहीं कि एक दिन आया 2-4 गोलियों को या कुछ ड्रग्स को मिक्स किया और कोविड की वैक्सीन बन गई। उसके ऊपर बहुत रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले तो उस वायरस को समझना पड़ता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ता है, फिर जाके उसके ऊपर कौन से ड्रग्स वगैरह एप्लीकेबल हो सकते हैं या फिर कौन उसका इंटेंशन कम कर सकता है, इंटेंसिटी कम कर सकता है, ये समझेंगे। इसलिए रिसेंटली हमने पता है बहुत घटिया तरह की दवाइयां आप लोगों को, मतलब जिन लोगों ने उसको महसूस किया है या फिर जो इस पर्टिकुलर थ्रू से फैमिली में गए हैं उन लोगों ने देखा है कि जो कोविड पॉजिटिव पाए गए, द कॉमनली गिवन मेडिसिन टू एवरीवन इज फैबफ्लू 800। फैबफ्लू 800 इज अ पर्टिकुलर टैबलेट विच एंश्योर्स कि बॉडी में से वायरस खत्म हो। अब वो जो मेडिसिन है, इट इज नॉट अ कोविड मेडिसिन विच इज बीइंग, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है। इबोला करके एक बीमारी थी, उस इबोला बीमारी की वो दवा थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ वायरस की इंटेंसिटी को कम करने के लिए लिया जा रहा है। अब ये सारा डायरेक्टली देंगे क्या? फ्लैफ्लू बिना कुछ बोले करे अगर तुम लोग को फ्लैफ्लू दे दी टैबलेट और तुमने वो ले लिया, अगर आपके बॉडी में वायरस ही नहीं है तो ऐसे जो टैबलेट्स है इनका जो कुछ भी रेशो या ड्रग्स का जो कुछ भी इनका कॉम्बिनेशन होता है वो इतना डेंजरस होता है कि अच्छे अच्छे लोगों का दिमागी संतुलन खो जाए। सो ये सारी चीजें करते वक्त, जैसे दूसरा इंजेक्शन का नाम क्या था, रेमडेसिविर। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उसके अंदर इस्तेमाल होता है। रेमडेसिविर इज ऑल्सो नॉट अ प्योरली कोविड पर्टिकुलर मेडिसिन, वो दूसरी कोई बीमारी का इस्तेमाल की गई दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल हम कोविड में वायरस के इफेक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए कर रहे हैं। जो पेशेंट का सिटी स्कैन अबाउ 18-20 आ रहा है उन्हें स्टीरॉइड्स भी दिए जा रहे हैं। जैसे स्टीरॉइड जिम में जब अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स वगैरह दिखते हैं, हमें लगता है 6 पैक एकदम ऐसे ऐसे बन रहे हैं। वो जितनी परफेक्ट बॉडी दिखती है, इतना परफेक्ट ह्यूमन बॉडी होना नामुमकिन है until unless you have steroids, until unless you have supplements, until unless you have steroids, you cannot have those exact perfect 6 pack shape। मुझे पूछा, मैंने 10 साल जिम में गुजारे हैं, until unless आप स्टीरॉइड लेते हो, सप्लीमेंट लेते हो, आप उतनी परफेक्शन बॉडी की तरफ नहीं जा सकते। और स्टीरॉइड लेना यानी मुसीबत मोल लेना है, क्योंकि आपका दिमागी संतुलन खो सकते हो। हाँ, जिम में आप फिजिकली फिट लग सकते हो, लेकिन जिम के अंदर until unless you have supplement and steroid, you cannot have that exact 6 pack ab with the hero flaunts in the movie। एक तो क्या हमारे यहाँ पिक्चरों का ज्यादा असर है, मुझ जैसे बहुत फिल्मी लोग हैं तो देख के प्रेरित होते हैं, तो दैट गिव्स बढ़ावा टू दिस रॉन्ग थिंग्स ऑल्सो। कुछ पेशेंट जिनका 18+ स्कोर था उन्हें स्टीरॉइड्स भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि स्टीरॉइड्स उतने स्ट्रांग रहते हैं। तो जब वायरस का इन्फेक्शन इतना बॉडी में है तो उससे फाइट करने के लिए उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसलिए कुछ पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स भी दे रहे थे। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि इसको, मेरा फ्रेंड है, क्लासमेट है, बैचमेट है, he was assigned his particular work at the civil hospital परभनी। he took some steroid, और स्टीरॉइड, खुद डॉक्टर है, पूरे फैमिली में कोविड था, कुछ समझ में नहीं आया उसे। राजेंद्र भालेराव नाम है, यू नो द भालेराव कॉम्प्लेक्स एट द वसमत रोड, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखो एक बड़ा सा ऐसा लंबा छोटा कॉम्प्लेक्स है वसमत रोड पे, ये दहीवाल के घर के सामने की तरफ। सो दैट पर्टिकुलर बिलोंग्स टू हिम। सो ही इज माय क्लासमेट, वो खुद डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी कोविड में पर्टिकुलर सिविल हॉस्पिटल पे थी। सो उसके इलाज के दौर बतौर डॉक्टर ही टुक पर्टिकुलर स्टीरॉइड, लेकिन उसमें क्वांटम में थोड़ा सा डिफरेंस आया, गलत आया। अल्टीमेटली उसका मेजर ऑपरेशन औरंगाबाद में करना पड़ा, और उसके जो जबड़े के पास पीछे की तरफ जितने दांत है, तकरीबन हमारे कितने दांत होते बेटा, 32 ना, कुछ लोगों के एक्स्ट्रा भी रहते हैं बाहर से ऐसे, तो नॉर्मली 32 दांतें होते हैं। तो 32 में से लगभग पीछे के और के जो 20 दांत है वो निकालने पड़े, एंड ही हैज अ मेजर ऑपरेशन। इतना भयंकर ये सब चीजें चल रहे हैं, इसके अंदर सब चीजों से आगे चलना, बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें देखी है, महसूस की है, खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये सब चीजों के अंदर जो सिचुएशन या जो पैंडेमिक है, इससे बाहर निकलने के लिए कितना बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता होगा, सोचो। और इतना बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इतनी बड़ी महामारी पैंडेमिक का होना है, डू यू थिंक इट कैन बी डन विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस? पहले फाइनेंस दो, फिर टेस्टिंग, और फिर बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। सो फाइनेंस, corporate finance also helps in research and development. I don't think I need to give much more explanation than this, right? Helps in research and development. Research and development must be undertaken for the growth and expansion of the business. Detailed technical work is essential for the execution of the project. अब ये जो दोनों कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, इनकी मंथली इनकम आफ्टर द सेल ऑफ वैक्सीन इज अराउंड 2000 crores।
मंथली इनकम जो अभी जो कुछ भी वैक्सीन वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो इस वजह से क्योंकि वैक्सीनेशन के प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है बेटा, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, उसी मुताबिक उतना ही कॉस्ट में बना के देना है, इसलिए 2000 करोड़ है। अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो यही कंपनियां उसी वैक्सीन से 2 लाख करोड़ से 1 रुपया कम नहीं कमाती, पूरा निचोड़ लेते हैं। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल हमने रेमडेसिविर के इंजेक्शन का देखा है। लास्ट में इंजेक्शन की कमी की वजह से 40 हजार में वो इंजेक्शन मिलने लगे। Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. This could require continuous financial support. अब इतने साल से कंटिन्यू कोविड के ऊपर काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, और 2-3 साल तक कोविड का ये वायरस है, ये एग्जिस्ट करने की पूरी जो है संभावनाएं बताई जा रही है। तो ओवर द पीरियड इतने वक्त, इतने लंबे दौर तक इतना बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, डू यू थिंक इट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस? अल्टीमेटली वी विल नीड फाइनेंस इन द business. Many a time a company has to upgrade its old product or develop a new product to attract the consumers. Let's say Samsung कंपनी ने कोई पुराने तरह के मोबाइल बना रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है, उसके मुताबिक हमें अब थोड़ा एक नया तरीके का फोन लॉन्च करना है। पहले उनके अलग तरह के चार्जर आते थे, अब सैमसंग के भी सी टाइप चार्जर आते हैं। तो डिजाइन में, मॉडल में, लुक्स में, डिस्प्ले में, एक्सेसरीज में बहुत से बदलाव कंपनी ने किए। अब ये सारे बदलाव अपने प्रोडक्ट में लाने के लिए उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो करने के लिए क्या लगता है बेटा? फाइनेंस। फॉर द कंपनी हैज टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ द मार्केट एनालिसिस एटसेट्रा व्हिच अगेन रिक्वायर्स द फाइनेंशियल सपोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म. आई एम रनिंग अ फैक्ट्री, I am having adequate finance, my business will run very softly. But let's say I am having inadequacy of finance and my finance management is going wrong. मेरे पास वर्कर काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स के बिल है, क्रेडिटर्स के बिल है, ऐसे बहुत सी चीजों का मुझे लाइबिलिटी है देना है, एंड माय फाइनेंस मैनेजमेंट इज रॉन्ग. मेरे पास बिजनेस में जितना पैसा आता गया मैं मेरे पर्सनल या मेरे शौक के लिए पूरा करता गया. ऐसे तो सीधे साधे शौक है बेटा मेरे, बाकी कोई टेढ़े मेढ़े शौक नहीं है मेरे ऐसे. वो पानी ब्रिंग, हाँ तो कहाँ था मैं? बिजनेस का पैसा अगर मैं लेकर लेट से कार ले रहा हूँ, बाइक ले रहा हूँ, ट्रिप पे जा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, अगर ये सारी चीजें अगर मैं करता हूँ तो इससे मेरे बिजनेस में फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट होगा. अब महीने की शुरुआत में जब वर्कर को पेमेंट नहीं मिलेगा, मटेरियल लाने के बाद अगला मटेरियल खरीदने के लिए सप्लायर को पेमेंट अगर नहीं दोगे, जिस क्रेडिटर से हमने माल उधार लिया है उसे पेमेंट हम नहीं दे रहे, ऐसे केस में मेरा बिजनेस स्मूथली फंक्शन कर पाएगा क्या? लेबर जो है पेमेंट नहीं मिलने की वजह से स्ट्राइक पे चले जाएंगे, काम पे आना बंद कर देंगे. सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर देगा. बैंक जिसने आपको लोन दिए उनका ब्याज नहीं अगर पे करोगे तो वो आपसे क्लेम करने लगेगी. नहीं अगर दे पाए तो जो सिक्योरिटी आपने दी है उसे मॉर्गेज, उसे जब्त करने के प्रोसीजर्स, उसे सीज करने का वर्क बैंक शुरू कर देगी. So ultimately this will have a negative impact on the functioning of my business. किसी भी बिजनेस को बड़े आसानी से धीरे से अगर आगे चलाना है तो उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही होना जरूरी है. So can I say corporate finance helps in smooth running of the business? क्योंकि स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस तभी होगा, रेगुलर पे आना, प्रोडक्शन करना, बेचना, परचेजिंग, ये सारी चक्री जो बिजनेस की तभी सही चलती है जब फाइनेंस मैनेजमेंट सही है. अब हमारे क्लास का मैनेजमेंट सही है तभी हमारे क्लास इतने सिस्टमैटिकली चल रहे हैं. टीचर्स को, फैकल्टीज को पेमेंट नहीं दे रहा हूं, दरवी को रेंट नहीं दिया है, वॉचमैन को पेमेंट नहीं दी है, ऐसे केस में क्या है क्लास चल पाएगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा है तो बिजली कट हो जाएगी, फैकल्टीज आना बंद कर देंगे, वॉचमैन काम छोड़ देगा, फिर मुझे वो आजकल वो अपने नए दोस्तों को भगाना पड़ेगा, राइट? फिर ये सारे काम जो है ये सारे रुक जाएंगे. क्लास का जो स्मूथ फंक्शनिंग है ये रुक जाएगा. क्लास का जो स्मूथ फंक्शनिंग है ये रुक जाएगा. बिजनेस अभी इतने स्मूथली क्यों चल रहा है? इससे ये समझ में आता है कि बिजनेस में फाइनेंस का मैनेजमेंट सही है. सो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. A smooth flow of the corporate finance is needed so that the salaries of the employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion of the existing product is carried out smoothly, and new products can be launched effectively. अल्टीमेटली बिजनेस को स्मूथली फ्लो होने के लिए सारे बिजनेस के डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है, और बिजनेस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा ही लगता है. क्या लगता है बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट,
brings coordination between different activities. ओके, ध्यान दो, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, अल्टीमेटली फाइनेंस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, राइट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेजिंग करेगा रॉ मटेरियल की और चीजों की प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर अलग रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रोडक्शन वालों को बताएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग वाले सेल्स की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की प्लानिंग करेंगे। और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग वाले जो सेल्स के जो ऑर्डर मिल रहे हैं उसके मतलब क्लियरिंग फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट चीजों को क्लियर और फॉरवर्ड करेगा और बेचेगा, भेजेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। अब यहां पे एक डिपार्टमेंट है, वो है फाइनेंस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए क्या लगता है बेटा? पैसा। अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस की अवेलेबिलिटी देखनी होगी और उसके मुताबिक रॉ मटेरियल की परचेजिंग करनी होगी। लेट्स से फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों के पास पैसे का मिसमैनेजमेंट है, तो प्रोडक्शन वालों को पैसा नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन वालों को पैसा नहीं मिला तो प्रोडक्शन वाला रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगा। अगर प्रोडक्शन वाले को रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो प्रोडक्शन वाले क्या प्रोडक्शन करेंगे? कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अल्टीमेटली क्या लगता है? पैसा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले रिसर्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने के लिए बिजनेस रखना है, तो रिसर्च की शुरुआत करने से पहले वो पैसा किसे मांगेंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा देगा तो ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो पाएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग वालों ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि पूरे गांव में जो है वो अलग अलग बैनर्स लगाएंगे, चौक में फ्लैश मॉब, यू नो व्हाट इज फ्लैश मॉब? ऐसे ही नॉर्मल सब लोग बैठे होते हैं, अचानक से 2-4 लोगों का ग्रुप आता है, झुंड आता है, वो गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, तो उसे हम फ्लैश मॉब कहते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसे हम आगे मार्केटिंग में अगर आप एक्सपर्टीज करते हो तो इसमें समझ में आएगा। फ्लैश मॉब जिसे कहते हैं, नॉर्मल जब चल रहा है अचानक से 2-4 लोग आते हैं जो से चिल्लाना पुकारा और गाना बीना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैश मॉब। और फिर डिजिटल मार्केटिंग है कुछ इस हिसाब के। अब गरीब का भी छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, तो इस तरह के सारे जो चीजें हैं, इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्लानिंग सेल्स और मार्केटिंग टीम ने बनाई है। बैनर लगाने के लिए बैनर वाला नसीर वाला बोलेगा पहले पैसा दो तो बैनर लगाओ। फ्लैश मॉब में जो लोग काम करने वाले हैं, जो पूरी एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे, पहले वो पैसा मांगेंगे, फिर जाके जो है फ्लैश मॉब वाले जो है अलग अलग जगह पे जाके परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट की अवेयरनेस बनाएंगे। मेरे जैसे छोटी मोटी डिजिटल कंपनी वाले पहले बोलेंगे पेमेंट दो तो हम आपका प्रमोशन शुरू करेंगे। अल्टीमेटली सेल्स और मार्केटिंग वालों की जो स्ट्रेटेजी रहेगी रिगार्डिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट can be carried out only when there is an adequate finance coordination with the finance department. Next, clearing and forwarding. फैक्ट्री में से माल कस्टमर के गोडाउन तक भेजना है या फिर कस्टमर की डोर स्टेप तक भेजना है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक है ना, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ट्रक वाला, लॉरी वाला, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, सड्डे दिल खो आया, तो ऐसा तो नहीं होना है बेटा। जो ट्रक वाले लॉरी वाले हैं वो पैसा लेंगे आपसे, पैसा जब दोगे तभी लॉजिस्टिक वाला, ट्रक वाला जो है आपका मटेरियल सही जगह पर पहुंचाएगा। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में C&F होता है। C&F जो होते हैं जो अपने फैक्ट्री से माल उठाकर अलग अलग होलसेलर रिटेलर के गोडाउन तक माल पहुंचाते हैं। वो कब पहुंचाएंगे? जब उन्हें भाड़ा दिया जाएगा। अरे तू दोस्त है मेरा, जाने देना, भेज दे। ऐसा एक हर ट्रिप कोई करेगा, लेकिन हर एक ट्रिप बिना आपसे पैसा लिए थोड़ी कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग वालों को भी जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग काम करना है, क्या वो बिना फाइनेंस के हो सकता है? पहले उन्हें फाइनेंस वालों से पैसा लेना होगा, उस ट्रांसपोर्टर को, उस लॉजिस्टिक वाले कंपनी को पैसा देना होगा, तब जाके क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग हो सकता है। तो इससे एक समझ में आता है चीजें प्रोड्यूस, सबसे पहले किसी चीज पे रिसर्च R&D होता है, R&D वाले प्रोडक्शन को बोलते हैं, प्रोडक्शन वाले सेल्स एंड मार्केटिंग को बताएंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग फाइलिंग क्लियरिंग को देंगे। अल्टीमेटली ये सारे जो डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके बिजनेस को स्मूथ चलाने का काम तभी हो पाएगा जब बिजनेस में कॉर्पोरेट फाइनेंस का सही मैनेजमेंट हो रहा है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजमेंट ही चूक गया तो क्या बाकी बिजनेस डिपार्टमेंट का होने या नहीं होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। बाकी डिपार्टमेंट तभी चलेंगे जब फाइनेंस सही चल रहा है।
इसलिए फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस का सही होना क्यों जरूरी है? बिकॉज दैट सेटअप्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। इन सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कर बिजनेस को स्मूथली चलाने का काम कौन करता है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? Corporate finance plays a significant role in control and coordination of activities of the organization. For production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting the other day-to-day financial requirement for smooth functioning of the production unit. Production department को finance नहीं दिया तो वो raw material नहीं खरीद पाएगी। अगर वो raw material नहीं खरीद पाए तो production of the goods and services cannot be done. Due to this, sales will also suffer and consequently income concern as well as the rate of profit will be affected. अगर कोई चीज प्रोड्यूस होगी नहीं तो सेल्स वाले क्या बेचेंगे, और कोई बिकेगा ही नहीं तो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाले क्या ले जाकर देने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन एक ही जगह से शुरू होता है, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। थस द एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हमारी क्लास अच्छी चल रही है, भगवान की दया से सब लोगों का प्यार, ट्रस्ट, सपोर्ट मिल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि हम एक और ब्रांच जो है नांदेड़ में स्टार्ट करते हैं एसपीसी की। अब एक और ब्रांच, अभी पार्टी मत मांग लेना, तो अभी एक और ब्रांच अगर हम एसपीसी के नांदेड़ में स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? एक्सपांशन करना है बिजनेस का। बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए मुझे वहां क्लासरूम की जगह लेनी होगी, वहां ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, और ये सारी चीजें करने के लिए अल्टीमेटली मुझे किस चीज की जरूरत होगी? फाइनेंस। रिसेंटली छोटा मोटा एक थोड़ा सा ट्रायल कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इनटू अ डिफरेंट बिजनेस। क्या है, कब है, जब होगा तब बताता हूं। एक अलग से एक बिजनेस लाइन में, चलो ठीक है बता दो, टू व्हीलर के शोरूम के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमारा बिजनेस क्लास का है, एजुकेशन सेक्टर का है। फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू अ पर्टिकुलर बिजनेस वेयर आई एम डीलिंग इनटू ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स। नाउ दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। जब आप चलते बिजनेस से कुछ अलग तरह के बिजनेस में अपने पैसे को डाइवर्ट कर रहे हो, बिजनेस का पैसा डाइवर्ट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। है उसी बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं एक्सपांशन। एसपीसी की नांदेड़ ब्रांच खोलना है एक्सपांशन, और एसपीसी के पैसे से केटीएम का शोरूम बनाना विल बी माय डाइवर्सिफिकेशन। दैट विल बी कंसिडर्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपांशन कैन बी डन ओनली व्हेन आई हैव फाइनेंस। जेब में रुपया नहीं और बोले केटीएम का शोरूम करेंगे, होगा? जेब में पैसा नहीं और बोले नांदेड़ का ब्रांच खोलेंगे, होगा क्या? नहीं। नांदेड़ का ब्रांच खोलना है, केटीएम का शोरूम करना है, जो कुछ भी चीजें हमें करनी है वो सब करने के लिए अल्टीमेटली क्या लगने वाला है? पैसा। फाइनेंस इज utmost required. So finance promotes expansion as well as diversification. Are you getting my point? Modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies. Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of a company. Next point. आज पूरे 10 पॉइंट कंप्लीट करने हैं क्योंकि बहुत इजी है। आज का पॉइंट और डिस्कशन कंप्लीट करके ही रहूंगा मैं, चाहे चुप करो, कच्चा करो, कि झोपो, कुछ भी करो, कुछ लेना देना नहीं मेरे को। राइट। नेक्स्ट, मैनेजिंग रिस्क। अगला पॉइंट क्या है? मैनेजिंग रिस्क। अब रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंस का कैसा संबंध है समझने की कोशिश करो। अब देखो लास्ट 3 महीने और पिछले साल के 6 महीने में एक चीज क्या रही है? लॉकडाउन। लॉकडाउन में सारे जितने बिजनेस हाउस है, बिजनेस एंटरप्राइज है, छोटी मोटी दुकान है, सब के सब पिछले साल के 6 महीने और ये साल में 3 महीने में बंद थे। अब 3 साल बंद है या पिछले 6 महीने बंद है, तो क्या ऐसे केस में कोई दुकानदार ऐसा बोल सकता है कि मैं भाड़ा नहीं दूंगा? जो सैलरी पे काम करने वाले नौकर हैं उन्हें सैलरी नहीं दूंगा। जो आपके पास सैलरीड वर्कर काम करता है उसकी अगर सैलरी ना दे तो खुलने के बाद वो आपके पास काम के लिए क्यों आएगा? जो आपका लॉर्ड है, लैंडलॉर्ड है, उसे अगर किराया ना दो, अगर हमने दलवी साहब को बोला कि हम किराया नहीं देते तो दलवी साहब बोलेंगे चलो ठीक है, एसपीसी 1 2 3 की दौर लेकर जाओ, बोलते ना, राइट। सो इसका मतलब क्या है? ये एक रिस्की सिचुएशन, एक ऐसा इमरजेंसी का टाइम आया है जब मुझे बिजनेस को ठीक तरह से सर्वाइव करवाना है। और ऐसे मुश्किल के दौर में जब मेरे बिजनेस को ठीक तरह से चलाना है, सर्वाइव करवाना है, अल्टीमेटली मुझे क्या हेल्प कर रहेगा? फाइनेंस। अगर मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है, इवन आई कैन सर्वाइव दिस टफ टाइम्स। बहुत से बिजनेस का फाइनेंस मैनेजमेंट गलत हुआ है, इसीलिए हमने देखा है कि आए दिन में लॉकडाउन में बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए हैं। बंद होने का रीजन क्या है? उनका फाइनेंस मैनेजमेंट गलत हुआ है। और जिन जिन बिजनेस ने फाइनेंस मैनेजमेंट इन टफ टाइम में ठीक तरह से किया है, इन रिस्क वाले सिचुएशन में ठीक किया है, लॉसेस को बेयर करने की जिन बिजनेस के पास ताकत थी,
लॉस को बेयर करने की ताकत उसी बिजनेस के पास आ सकती है जिसके पास एडिक्वेट पैसा है, जिसके पास एडिक्वेट पैसा है। और फाइनेंस मैनेजमेंट ही आपको बिजनेस में रिस्क बेयर करने की ताकत दे सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Company has to manage several risks such as sudden fall in the sales, loss due to natural calamity, loss due to strike, etc. Company needs financial aid to manage such risks. Recently एक वाक्य हुआ था जहां पर मेरा दोस्त जो लड्डा है उनका एक बहुत बड़ा शोरूम था जिंदू रोड पे, वुड्स वाला। आप लोगों को मालूम होगा कि पूरा के पूरा शोरूम जल गया। नाउ दिस इज अ वेरी अनसर्टन थिंग विच हैज हैपेंड टू माय फ्रेंड, जिसके अंदर शोरूम के जितना मटेरियल है उसका कुछ एक सादा वो सोफे का सादा स्पंज तक नहीं बचा, सब कुछ जल गया बिल्डिंग के साथ। वो बिल्डिंग की सीलिंग की तक जलकर नीचे गिर गई, सिर्फ दीवारें बच गई बस। पीओपी वीओपी सब खत्म हो गया। अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद वापस से उस शोरूम को उसी सिचुएशन में लाने के लिए क्या लगा उन्हें? फाइनेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेसिंग ऑफ द ओल्ड एसेट्स। लेट्स से 2 साल बाद ये वाली टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई और मुझे इस टेक्नोलॉजी को हटाकर कोई और नई टेक्नोलॉजी लानी है जो वर्चुअल क्लास के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। और नई टेक्नोलॉजी का कॉस्ट जो है लेट्स से 5 लाख रुपए है। So I have to replace the old software with a new software, and for bringing in the new software I will require 5 lakh rupees. So ultimately replacement of the assets in the business can be done only when there is adequate finance. पुराने बेंच हटाकर नए बेंच लाने हैं, हटाने के लिए नए लाने के लिए ला लेंगे, लेकिन लाने के लिए क्या लगता है? पैसा। Are you getting my point? Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. They have to replaced by the new asset. Finance is required to purchase the asset. बहुत सिंपल पॉइंट है, इसीलिए टाइम पास नहीं कर रहा। इसको आज डिस्कशन को यहाँ खत्म करेंगे ताकि फिर नेक्स्ट हेडिंग के साथ शुरुआत हो सके, क्योंकि जाने से पहले मेरा टारगेट है कि अल्टीमेटली ये चैप्टर खत्म करना है। और ऐसे लास्ट के 5-10 मिनट में तुम्हें हमें ऐसा करते रहना, फिर तो बेटा संडे को भी 4 घंटे लेके स्पीच पढ़ाऊंगा, देख लेना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। 2 मिनट के लिए फर्ज करिए कि मेरे ये बिजनेस में मैंने मेरे किसी दोस्त से पैसे उधार लिए हैं और मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं इसे 10% का इंटरेस्ट तेरे लोन पे दूंगा। सो आई हैव लेट्स से 10 लाख रुपीज ऑफ बोरोड कैपिटल एंड आई हैव प्रॉमिस्ड हिम दैट आई विल बी पेइंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑफ सेम। 10% के हिसाब से 10 लाख का ब्याज कितना होता है सालाना? 1 लाख रुपए। अब अल्टीमेटली जो कैपिटल तुमने बिजनेस में लाया है वो फ्री है क्या? नहीं, उसे रिवॉर्ड देना पड़ता है। इवन ओन्ड कैपिटल दैट इज शेयर कैपिटल आल्सो हैज टू बी गिवन अ रिवॉर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज डिविडेंड। और जो बोरोड कैपिटल होता है, जो पैसा उधार लाया होता है, उसके ऊपर जो रिवॉर्ड देना होता है वो होता है इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट देना है, जो डिविडेंड देना है, अल्टीमेटली वो भी देने के लिए क्या लगता है? पैसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So when you have to pay dividend and interest, that is reward on the capital, again for the payment of the dividend as well as the interest you will require finance. Yes or no? So corporate finance helps in making the payment of dividend as well as the interest. तिवारी ध्यान दे, finance is needed to pay the dividend to the shareholders and interest to the borrowers, or you can say the debt holders to whom we are owing the debt. Final point, payment of taxes and fee. In India, we operate under a particular form and a structure where every organization has to bear 2 types of taxes. One is called as direct tax, another is called as indirect tax. Business में जो profit होगा उस profit के ऊपर जो direct tax लगेगा that is called as income tax. Business का जो profit होता है उसे slab के मुताबिक हमें उस business के ऊपर tax भरना पड़ता होता है, जो होता है income tax. ठीक उसी तरह से अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है मैक्सिमम बिजनेसेस को, जिसे हम कहते हैं जीएसटी, जिसके बारे में प्रतीक सर ने आपको बताया। तो जीएसटी पे करना पड़ता है और इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और ये टैक्स का पेमेंट जो हमें सरकार को करना है, दिस इज टू बी मेड विद मनी। अल्टीमेटली टैक्स का जो फीस का जो गवर्नमेंट को हमें पेमेंट करना है, वो पेमेंट और सब करने के लिए हमें क्या लगेगा? फिर से पैसा या फाइनेंस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। Company has to pay to the government such as income tax, GST and fees for register of the companies on the various occasion of finance is needed for paying these taxes and fees. So these are the various 10 points which could tell us why is it so important to have corporate finance. Am I okay and clear? बता दिया था स्टार्ट में सिंगल स्टार।
शुरू करने से पहले ही बताया था मैंने, ये पॉइंट शुरू करने से पहले ही बताया था सिंगल स्टार है, ये पॉइंट शुरू करने से पहले ही मैंने बताया था ये सिंगल स्टार है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस सिंगल स्टार है। अगर नहीं भी बताया होगा तो ध्यान रखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस फॉर्म सिंगल स्टार ऑफ योर चैप्टर। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस टुमारो।